تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم پرانے عہد نامے میں سے دوسرے سیموئیل کی کتاب کا آغاز کرنے کو ہیں، لیکن پروگرام کے آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بھائی معین خوش آمدید، بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید، شکریہ بھائی، اور ساتھ ہی اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی معین، سب سے پہلے آپ ہمیں دوسرے سیموئیل کی کتاب کے بارے میں بتائیے، اور اس کی تقسیم کے حوالے سے، اور آج جو کہ ہم پہلا باب شروع کرنے والے ہیں اس حوالے سے۔ اس کتاب کے واقعات پہلے سیموئیل کی کتاب سے منسلک ہیں۔ پہلے سیموئیل کی کتاب میں 110 سال کے واقعات میں روح القدس بہت جلدی حرکت کر رہا تھا، وہ ہمیں اس ہدف تک لے جانا چاہتا تھا جس سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے ایلی، پھر سیموئیل اور ساؤل کے متعلق پڑھا تھا، اور ساؤل کی زندگی ختم ہوئی اور دوسرے سیموئیل کے آغاز کے ساتھ ہم داؤد کی سلطنت کا آغاز دیکھتے ہیں۔ پہلے باب سے 10ویں باب تک ہم داؤد کے تخت اور سلطنت کے قیام کو اور خداوند کے عہد کی تکمیل کو دیکھیں گے۔ ہم داؤد کو اس کے جلال میں اور اس کی سلطنت میں خوشحالی اور اس کی شاندار روحانی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے زوال کا آغاز ہوتا ہے، اور روح القدس یہ سب ہمارے لیے اس نیت سے قلم بند کرتا ہے کہ ہم اس کے سبق اور تنبیہ حاصل کریں۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ عظیم کا زوال بھی عظیم ہوتا ہے۔ در حقیقت جیسے ہم اس مطالعے میں دیکھیں گے، داؤد کا انجام برا ہوا۔ آخری 2 ابواب میں ایک خوبصورت گیت کے ساتھ اس کا اختتام ہوا۔ داؤد اسے گا کر اپنی زندگی کے عظیم تجربات اور ان شاندار چیزوں کے متعلق بتاتا ہے جو اس کی سلطنت کے سالوں کے دوران خداوند نے اس سے کی۔ وہ 30 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور مشکلات کے سب سالوں کے بعد وہ 40 برس تک بادشاہ رہا، جس دوران اس نے خداوند کو جانا۔ وہ خوبصورت گیت گائے۔ دیکھیں، جو کوئی سیموئیل کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ داؤد کے زبور پڑھیں۔ وہ ان 2 کتابوں کے متعلق ایک خاص تصویر پیش کرتا ہے۔ صحیح، پہلے باب کا عنوان کیا ہے؟ پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ داؤد کی مشکلات اور بھاگنے کے ایام ختم ہوئے۔ اس کا دشمن ساؤل جو داؤد کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا مر گیا۔ میں داؤد کے دل اور اس کی ہمدردی بھی دیکھ سکتا ہوں، جیسا کہ خدا نے اس کے لیے کہا۔ وہ واقعی اس کا حقدار ہے کہ میرے دل کے مطابق ایک شخص، آپ کا دشمن جو آپ کی سلطنت چھیننا چاہتا ہے، مر گیا ہے۔ بظاہر آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اپنے لوگوں اور خاندان کو اکٹھا کر کے پورا دن جشن منانا چاہیے، پر داؤد نے ایسا نہ کیا۔ داؤد اس آدمی کی موت پر رویا جس نے پوری زندگی تکلیف دی۔ داؤد نے ہمدردی دکھائی، اور ویسے ہی یہ عارضی نہیں تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بس عارضی تھی۔ اگر ہم 9ویں باب کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے دلی اور سچے جذبات تھے۔ جب اس نے ساؤل کے گھر سے کسی کی تلاش کی تاکہ اس کو خدا کی رحم دلی ظاہر کرے، سو اس نے خبر سنی، اور اس باب کا مطالعہ کرتے وقت ہم اس کی تفصیل جانیں گے۔ اور جب عملیکی نے یہ دردناک خبر اسے سنائی کہ میں نے ساؤل کو مار دیا ہے اور وہ مر گیا ہے، اس نے اس کے بارے میں ایک خوبصورت بات بولی تھی۔ اس نے کہا، ساؤل میرے لیے یونتن جیسا ہے۔ اسے اس کی موت کا بہت غم اور افسوس ہوا۔ صحیح، میں پہلے باب میں سے چند آیات کی تلاوت کروں گا اور پھر ہم ایک وقفہ لیں گے۔ اور ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد عمالیکیوں کو مار کر لوٹا، اور داؤد کو سکلاج میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکرگاہ میں سے ساؤل کے پاس سے پیراہن
چاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا۔ داؤد نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں اسرائیل کی لشکرگاہ میں سے بچ نکلا ہوں۔ تب داؤد نے اس سے پوچھا، کیسا حال رہا، ذرا مجھے بتا۔ اس نے کہا، لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے، اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں۔ تب داؤد نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا، تجھے کیسے معلوم ہے کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے؟ وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جلبوع پر اتفاقاً وارد ہوا، اور کیا دیکھا کہ ساؤل اپنے نیزے پر جھکا ہوا ہے، اور رتھ اور سوار اس کا پیچھا کرتے آ رہے ہیں، اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا۔ میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے مجھے کہا، تو کون ہے؟ میں نے اسے جواب دیا، میں امالیکی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس کھڑا ہو کے مجھے قتل کر ڈال، کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں، اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے۔ تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے بچے گا نہیں، اور میں اس کے سر کا تاج اور اس کے بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں۔ تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا، اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے، اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ پھر داؤد نے اس جوان سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک پردیسی کا بیٹا اور ایک امالیکی ہوں۔ داؤد نے اس سے کہا، تو خداوند کے ممسوح کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈرا؟ پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا، نزدیک جا، اس پر حملہ کر۔ سو اس نے ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور داؤد نے اس سے کہا، تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو ہی نے اپنے منہ سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداوند کے ممسوح کو جان سے مارا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کس کا سوال ہے؟ جی، پہلے سیموئیل اس کے 31 باب میں ہم نے ساؤل کی موت کا قصہ پڑھا اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس نے خودکشی کیوں کی، لیکن اس کے بعد ہمیں یہاں دوسرے سیموئیل کے پہلے باب میں ہم نے سیکھا کہ ایک امالیکی جوان نے اسے قتل کیا۔ یہ اصل میں کیسے مرا اور ان دونوں میں تضاد کیوں ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا قتل ہوا یا پھر اس نے خودکشی کی۔ در حقیقت وہ دو نہیں بلکہ ایک کہانی کے دو حصے ہیں۔ غالباً یہ دو حصے ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم 31ویں باب میں دیے حوالے کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ یہ جنگ ساؤل پر بہت بھاری ہوئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا۔ یہ جملہ قابل غور ہے کہ وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تیر اندازوں سے اس قدر خوفزدہ ہوا اور زخمی ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہوا اور زخمی ہو گیا اور اس نے اپنی جان لینے کا اس وقت فیصلہ کیا۔ کیونکہ اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنے صلہ بردار کو اسے مارنے کو کہا۔ اس نے ایسا نہ کیا، سو ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گر گیا۔ جب وہ اس پر گرا تو غالباً وہ مرا نہیں بلکہ وہ اس سے زخمی ہو گیا، اور جنگ اس پر بھاری ہو گئی اور وہ اب تک جیتا تھا۔ وہ مزید پریشان ہوا، اس نے رہائی پانے کی کوشش کی، اور اسی کہانی کا دوسرا حصہ دوسرے سیموئیل میں ملتا ہے۔ جب وہ امالیکی نوجوان سے ملا تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے مار ڈال۔ سو اس جوان امالیکی نے اس پر ترس کھایا اور ساتھ ہی ساتھ سوچا کہ داؤد بادشاہ سے اسے انعام ملے گا۔ سو اس امالیکی جوان نے اسے قتل کیا اور اس کے سر کا تاج اور اس کے بازو کا کنگن لایا تاکہ ثابت کر سکے کہ اس کو مارنے والا وہی تھا، اور اس نے یہ کہانی داؤد کو بتائی۔ داؤد جانتا تھا کہ اسی نے اسے قتل کیا اور داؤد نے اسے اس کا بدلہ دیا کیونکہ اس نے خداوند کے منسوخ کو قتل کیا۔ سو ان دونوں کہانیوں میں تضاد نہیں، ان دونوں کہانیوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی تلوار پر گرا لیکن وہ مرا نہیں، ایک امالیکی نے اسے قتل کیا۔ بھائی معین، ہم ساؤل کی موت کے واقعے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، یہ بتائیے۔
خدا साउल के साथ बहुत सब्र से पेश आया, पर उसने जो बोया वही काटा, और बुराई का यही अंजाम है। अगर हम रूहानी तौर पर इस अमल को देखें जो हम बहुत बार सुनते हैं, साउल दरअसल जिस्म नफ्स का निशान है। जो ईमानदार जो अपने नफ्स पर काबू पाले हमेशा एक फतहमंद जिंदगी बसर करता है। और यहाँ पर मैं दाऊद को मसीह की अलामत के तौर पर जाहिर करूँगा। एक दिन आएगा, दुनिया के इख्तिताम पर एक दिन ऐसा आएगा, मसीह आएगा और अपने सब दुश्मनों को तबाह कर देगा। उसका कोई भी दुश्मन ना बचेगा, और उस रोज़ एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम ही वाहिद होगा, और मसीह दुनिया पर हुकूमत करेगा। और जैसे बनी इसराइल दाऊद के तख्त के सामने झुक गए, वैसे ही पूरी दुनिया मसीह के आगे झुकेगी। दाऊद ने इंसान होते हुए सब्र से इंतजार किया और खुदावंद ने उसे मसा किया, लेकिन उसने अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से उस वादा के पूरा होने का इंतजार किया। और खुदावंद ने उसे मसा किया, लेकिन उसने अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से उस वादे के पूरा होने का इंतजार किया। और जब वक्त आया तो सब जल्दी हो गया। उसने दाऊद के लिए रास्ता साफ किया। दाऊद ने बदला लेने के लिए भी खुदावंद की मर्जी का इंतजार किया कि खुदा उसके दुश्मन साउल को खत्म करे, और उसका दुश्मन मर गया। वो मर गया और उसके पास दो तरह के मौके भी आए, लेकिन उसने अपना सब मामला खुदावंद के हाथ में छोड़ दिया था। भाई फयाज, हमें बताएं कि अमालिक कौन था और रूहानी तौर पर यह किसका हवाला देता है? अमालिकी ईसाऊ की नस्ल से था, जो कि जिस्म को जाहिर करता है। वो हमें मौजूद है, और वो गुनाह जो हमें बसा हुआ है, और जिस्मानी नियत जो हमें है, या वो है। बुरी जिस्मानी नियत जो हमें आदम से विरासत में मिली। वो नियत जिसे गुनाह पसंद है, वो खुदा की बातों को पसंद नहीं करती, और खुदा की पाक नियत से मुताकबत रखने वाली चीजों को पसंद नहीं करती, और उसका झुकाव गुनाह और बदी करने की तरफ है, और वो अपनी मर्जी ही करती है। वो अमालिकी को जाहिर करता है। इसका जिक्र पहली दफा पैदाइश के 36वें बाब में आया, लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब शैतान पर आसा मारा गया और लोगों ने उस शैतान से पिया, तो वो फिर से जाहिर हुए। जिस शैतान को मारा गया वो मसीह को जाहिर करती है, ताकि रूहुल कुद्स आए। और इसके फौरन बाद जबकि लोगों को आगे बढ़ने और बरकत हासिल करने से रोकने वाले और उनसे लड़ने वाले सबसे पहले दुश्मन अमालिकी थे, और ये वो बुरी नीयत है जो हम में मौजूद है। पहले शमूएल के 15वें बाब में एक ऐसा मंजर है जिससे हमें ये मालूम होता है कि साउल को बुरा महसूस हुआ। उसे अमालिकियों के बादशाह अजाज के लिए बुरा महसूस हुआ, और उसने उसे जीता रखा। उसने अमालिकियों को जीता रखा। जिस गुनाह को हम नहीं मारते वो हमें मार देता है। अगर हम रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद कर देंगे, अगर हम जिस्म के लिए बुरा महसूस करेंगे और अपने जिस्म को ताबे करके गलबा हासिल ना करेंगे, और अगर हम अपने अंदर जिस्म के लिए बुरा महसूस ना करेंगे, तो रोमियो के 8वें बाब में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। जिन गुनाहों को नहीं मारेंगे वो हमें मार देंगे। कभी कभार नए जमानों में हम बादशाहत और हुकूमतों को देखते हैं। जो भी इख्तिदार में आता है हमेशा अपने से पहले के बादशाह के पुराने अमाल में बुराई तलाश करता है। मतलब कि वो उसको कत्ल करने या कैद करने की कोशिश करता है, और वो उसके हुकूमत का जायजा करता है, उसके बुरे कामों को सामने लाता और है। मिसाल के तौर पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके माजी में कोई बुराई थी या नहीं, पर जो भी इख्तिदार में आता है अपने पहले से बादशाह की छानबीन करता है। बेशक पहले वाले ने कामयाबियां हासिल की हों, उन्हें छोड़कर वो उसकी नाअहली को नुमाया करेगा ताकि अपने पूरे इख्तियार का मुजाहिरा करे। तो मेरा ख्याल था कि जब वो दाऊद के पास साउल की मौत की खबर लाएगा तो वो कहेगा खुदाउन ने उसे मारा, खुदा का शुक्र है वो मारा गया, वगैरह वगैरह, और वो साउल की गलतियों का जिक्र शुरू कर देगा। लेकिन दाऊद और उसके लोगों का रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने मातम किया और रोए और शाम तक रोजा रखा। लिहाजा इस नुक्ता नजर के हवाले से हमें कुछ बताइए। देखें, यहाँ मैं कहूंगा कि उसके दिल में अपने दुश्मन के लिए बदले की नीयत और उसके अंदर गरूर नहीं था, जिसने उसे 13 से लेकर 15 सालों तक परेशान किया था। लेकिन इसके बरक्स उसने साउल की चीजों की तारीफ की। उसने कुछ झूठ नहीं कहा। उसने कहा, इस्राएल की बेटियों, साउल पर रो जिसने तुम्हें नफीस नफीस अरगवानी लिबास पहनाए। और यकीनन साउल ने ऐसा किया था। और मैं कहूंगा कि वो ऐसा शख्स था जिसे शकी मारना और फख्र करना बहुत पसंद था, क्योंकि उसने इस्राएल की बेटियों को बहुत अच्छे लिबास उसके बारे में ये कहा। दाऊद ने कहा, जबरदस्त कैसे खेता है, और यकीनन वो लड़ाई में जबरदस्त था। उसकी उस फतह को देखें जो उसने यबीस जलाद के खिलाफ हासिल की थी, और वो जलबुआ के पहाड़ों पर गिर पड़ा और वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने वो चीजें तलाश की जिससे वो साउल की तारीफ कर सके।
सो उसने झूठ नहीं कहा, पर उसने उसके बुरे कामों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। एक अजीम आदमी। इसके अलावा उसका अपना अजीज दोस्त उसकी वजह से दुखी था। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल है, और सवाल ये है, खुदकुशी के बारे में खुदा की क्या राय है? जिंदगी के हालात और मुश्किलात के नतीजे में इंसान, यहाँ तक कि ईमानदारों को भी ऐसे लम्हात का सामना करना पड़ता है। यकीनन ये मुमकिन हो सकता है कि मायूसी खुदकुशी तक ले जाए। बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या कहती है? मैं आपकी इस बात से रजामंद हूँ। मुमकिन है कि मायूसी हो, फिर भी बाइबल में खुदकुशी के मुतालिक वाक़यात कलमबंद हैं। उसमें हमने गौर किया है कि वो सब बदकार लोग थे, उनमें से कोई भी ईमानदार नहीं था। हाँ, ईमानदार मायूस हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो खुदकुशी की हद तक जा सकता है। लेकिन खुदकुशी के बारे में आम राय ये है कि पहली चीज़ जो खुदकुशी करता है, अपने आप को कत्ल करता है। क्या वो अपनी रूह का मालिक है? मेरा ख्याल है कि इंसान की तख्लीक के आगाज में बाइबल कहती है, और खुदावंद ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। सो उसकी रूह उसकी नहीं है, जीती जान हुआ। ये रूह खुदा की है जिसने उसे दिया है। सो इंसान का ये हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को बढ़ाए या कम करे। लाजर और अमीर आदमी की कहानी में नहीं, बल्कि अमीर आदमी की कहानी में जिसकी जमीन अच्छी पैदावार देती थी, उस कहानी में वाज़ेह है कि उसने खुद से ये सोचा कि रूह तेरी नहीं है। खुदावंद ने कहा सब जाने मेरी हैं, लेकिन उसने अपनी जान को अपना समझा। मैं तुझे खाने पीने को दूंगा और सालों तक तुझे खुश और मुतमईन रखूंगा। जैसे वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बढ़ा लूंगा, खुदावंद उसे कहता है ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ वो अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना नहीं बल्कि घटाना चाहता है, वो खुद को मारना चाहता है। इसलिए भी यही असूल है जिसे खुदावंद इससे ये कह रहा हो, तू नादान है, क्योंकि तू अपनी जिंदगी का एक भी दिन घटा या बढ़ा नहीं सकता। बाइबल में मशहूर खुदकुशी के वाक़यात इसका सबूत हैं, जो भाई मोइन बता रहे हैं। पुराने अहदनामे में अखी तिफ्ल और नए अहदनामे में यहूदा इस्करियोती दोनों खुदावंद के ममसूख के खिलाफ थे। शरीर वो जो मसीह में सो गए से मुराद है कि खुदावंद यसू ईमानदार की रूह कब्ज होने के अमल को देखता है, वो उसकी मौत को आसान बनाता है। और ईमानदारों के हालात कैसे भी हों, चाहे मुश्किलात उसको कितनी ही मायूस और नाकाम कर दें और खौफजदा कर दें, उस बड़े सरदार काहिन के लिए सब कुछ मुमकिन है। लेकिन उस बड़े सरदार काहिन जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, उसका वादा है कि वो उनकी भी मदद करता है जिनकी आजमाइश होती है। आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। खुदा सच्चा है, वो तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। इसलिए बड़े सरदार काहिन की बदौलत हम ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते कि अपनी जिंदगी से मायूस होकर उसे खत्म कर दें। जी ठीक है भाई फयाज, आज मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है। 17वीं आयत में दाऊद साउल और यूनितन पर मरीसा के साथ मातम करता है लिखा है, और दाऊद ने साउल और उसके बेटे यूनितन पर इस मरीसा के साथ मातम किया, और उसने उनको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कुमान का गीत सिखाएं। देखो वो याशिर की किताब में लिखा है, ऐ इस्राएल तेरे ही ऊंचे मुकामों पर तेरा फख्र मारा गया, हाय जबरदस्त कैसे खेत आए। ये जात में ना बताना, अस्कलकन के कूचों में इसकी खबर ना करना, ना हो कि फलस्तियों की बेटियां खुश हों, ना हो कि नामख्तूनों की बेटियां फख्र करें। ऐ जलबुआ के पहाड़ों तुम पर ना ओस पड़े और ना बारिश हो और ना हदिया की चीजों के खेत हों, क्योंकि वहां जबरदस्तों की सिपर बुरी तरह से फेंक दी गई, यानी साउल की सिपर जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। मकतूलों के खून से, जबरदस्तों की चर्बी से यूनतन की कमान कभी ना टली और साउल की तलवार खाली ना लौटी। साउल और यूनतन अपने जीते जी अजीज और दिलपसंद थे और अपनी मौत के वक्त अलग ना हुए। वो उकाबों से तेज और शेर बबरों से जोरावर थे। ऐ इस्राएल की बेटियों,
साउल पर रो जिसने तुमको नफीस नफीस अरगवानी लिबास पहनाए और सोने के जेवरों से तुम्हारी पोशाक को आरास्ता किया। हाय, लड़ाई में जबरदस्त कैसे खेत आए। यूनितन, तेरे ऊंचे मुकामों में कत्ल हुआ। ऐ मेरे भाई यूनितन, मुझे तेरा गम है। तू मुझको बहुत ही मरगूब था। तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा। हाय, जबरदस्त कैसे खेत आए और जंग के हथियार नाबूद हो गए। भाई फयाज, ये बहुत पुरजोर अल्फाज हैं, इन अल्फाज के मुतालिक हमें बताइए। वैसे वो जिस तरह साउल और यूनतन को बयान करता है नहायत खूबसूरत है। उसमें तकब्बुर या हसद या नफरत का कोई निशान ना था। वो उनको उनकी सिफात के साथ बयान करता है। वो उनका हवाला फखर और शेर बबरों और लड़ाई में जबरदस्त अल्फाज से देता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो बात मेरे दिल को छुई वो ये है कि उसने अपने दोस्त यूनतन को कैसे बयान किया। जब उसने कहा, ऐ मेरे भाई यूनतन, मुझे तेरा गम है तो मुझे बहुत ही मरगूब है। तेरी मोहब्बत मेरे लिए बहुत अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से ज्यादा। और बाइबल में औरतों की मोहब्बत के बहुत से शवाहिद हैं। औरतों की मोहब्बत करने और अपने एहसासात का इजहार करने की काबिलियत मर्दों में ज्यादा है। और मुझे ये खुदाम यीशु की याद दिलाता है, जब वो इस दुनिया में था तो उसको धोखा देने वाली, बेचने वाली या इनकार करने वालों में औरतें थीं और किसी औरत ने उसकी जमीन पर तौहीन ना की। मेरा मतलब है कि एक मर्द ने बेचा, एक मर्द ने धोखा दिया और एक ने तौहीन की, पर किसी भी औरत ने कुछ बुरा ना किया। मैं अपने नाजरीन को मुकद्दसा मरियम की याद दिलाना चाहूंगा, जिसने सिर्फ 9 महीने नहीं गुजारे बल्कि उसने बच्चे को और फिर लड़के को और फिर नौजवान को घर में पाला। और जब यीशु खिदमत के लिए बाहर निकला तो गलील की औरतें उसके पीछे हो लीं और अपनी इस्तात के मुताबिक उसे चीजें मुहैया की। सिर्फ यही नहीं, उसके कदमों को आंसुओं से धोने वाली भी एक औरत थी और संगमरमर के अतरदान को भी तोड़कर उसकी मौत से पहले उसे मसा करने वाली भी एक औरत थी। और जब वो सलीब उठाकर जा रहा था तो उसके लिए रोने वाली औरतें थीं। और फिर उसकी कब्र पर मर्द नहीं बल्कि औरतें गईं। और मसलूबियत के दौरान भी औरतें ही थीं जो खड़ी रहीं और जाकर ये देखा कि उसे कहाँ दफनाया गया। और जी उठने की सुबह वो वहां थीं। औरतों ने सब कुछ खूबसूरती से किया क्योंकि उनमें देने की काबिलियत मर्दों से ज्यादा होती है। और यहाँ वो एक खूबसूरत बात कह रहा है। वो कहता है, ऐ यूनतन, तेरी मोहब्बत मेरे लिए औरतों से भी ज्यादा है। उसे अभी याद है कि वो उसके पास एला की वादी में गया। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि जब दाऊद के हाथ में जाती जूलियत का सर था और उन्होंने गीत गाए और लूट के माल को बांटा और किसी को फाते या उनको बचाने वाले की परवाह न थी सिवाय एक के। और वहां पर सब आदमी फतह पर लूट का माल हासिल करने में मशगूल थे, पर यूनतन को उस बचाने वाले और फाते की कदर थी। उसने सब कुछ उसे दे दिया जो उसकी शान और मुकाम को जाहिर करता था, जैसे वो कहना चाहता हो कि तू और बढ़े। और वो साउल के घर उसकी गवाही देने गया और वो उसकी खातिर अपने बाप के हाथों कत्ल होने वाला था। उसने ये सब खूबसूरत चीजें याद की और इस सब के लिए उसकी तारीफ की और उससे कहा, तेरी मोहब्बत मेरे लिए औरतों की मोहब्बत से ज्यादा है। और वो साउल बादशाह की तारीफ बयान करने के लिए चीजों को बयान करना नहीं भूला। सच में कमान का गीत बाइबल के शानदार मनाजर में से एक है। बहुत शुक्रिया। वक्त है कि हम जाने के मेहमानों ने आज क्या सीखा। हम साउल की मौत की कहानी जानना चाहते हैं, जैसे इसका जिक्र पहले सैमुएल के आखिर और दूसरे सैमुएल के शुरू में हुआ। क्या उसका कत्ल हुआ या खुदकुशी की? यहाँ हम एक कहानी के 2 हिस्से देखते हैं जो पहले सैमुएल 31 से शुरू होती है, जब जंग साउल पर निहायत भारी हो गई और तीरंदाजों ने उसे जा लिया। वहां वो सख्त मुश्किल में पड़ा, सो उसने खुदकुशी करने का सोचा। ये हमें कैसे पता चलता है? हमने पढ़ा कि साउल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा पर मरा नहीं। दूसरी कहानी हम दूसरे सैमुएल के पहले बाब में पढ़ते हैं, जब वो एक अमालेकी नौजवान से मिला। उसने उसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल। सो अमालेकी ने उसके कत्ल को अंजाम दिया, पर उसने पहले ही खुदकुशी का इरादा कर लिया था। सही। हम साउल और यूनतन के लिए दाऊद का मरीसा पढ़ते हैं। इसमें तकब्बुर और हसद क्यों नहीं था? ये एक बेहतरीन सबूत है कि दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक एक शख्स था, क्योंकि जो शख्स खुदा के दिल के मुताबिक हो उसमें हसद और तकब्बुर नहीं होता, बल्कि इसके बरअक्स दाऊद वो खुसूसियात ढूंढता है जिससे वो साउल की तारीफ बयान करे। और उसने यूनतन को खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। उसने उससे कहा, तो मुझको बहुत ही मरगूब था और उसकी मोहब्बत उसके लिए औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा है। और ये साबित करता है यूनतन की मोहब्बत दाऊद के लिए बहुत गहरी और सच्ची थी। लिहाजा खुदा के दिल के मुताबिक वो शख्स जो
खुदा के साथ है, कभी तकब्बुर नहीं करता। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। खादमिन का भी शुक्रिया। खुदा उनके फजल से अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. لمسة من هد ثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।